Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. In this video today, I am going to guide all those students who are preparing for UGC NET examination which is conducted in the month of December 2023. इस वीडियो में जो भी कंटेंट रहेगा that will be exclusively for those who are preparing for the law examination, and also I'm going to deal with the law syllabus in this particular video, that how you have to ace the law syllabus for this particular exam. Before we start with the discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel, and if you have any queries, you can reach out to us by any of the following methods. You can email us on hello@iexamby.com, call us on 9205524028, or visit our website www.iexamby.com. UGC NET JRF examination, it is the same examination by which you can qualify NET, as well as if you cross the sufficient cutoff for JRF, you can qualify by way of single examination. You can get a junior research fellowship in law subject. At the same time, you can get it NET also. If suppose आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं होती है JRF के लिए, लेकिन आपकी बाउंड्री कट ऑफ की NET के लिए क्रॉस हो जाती है, तो आप NET भी ले सकते हैं. It is on how you prepare, how hard you work, and don't forget that how smart you work. That is very important. अभी 14th दिसंबर को लॉ का एग्जामिनेशन है. आप लोगों ने अभी तक तो शेड्यूल देख ही लिया होगा, एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट वी हैव फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल एट www.iexamby.com. वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं. यू कैन चेक आउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन द लॉ सेक्शन दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. So you can check it out on www.iexamby.com. Attempt it. If you have any queries, do reach out to us. You can also write to us in the comment section of this video. So as I was telling you, 14 दिसंबर को आपका लॉ का एग्जामिनेशन है, वो भी शिफ्ट 2 में. आप लोगों ने शेड्यूल तो वैसे अभी तक देख ही लिया होगा. यू माइट बी प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स वेल, एंड अभी आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बना ही ली होगी. यू हैव द लास्ट एग्जामिनेशन, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एज कम्पेयर टू अदर्स. दो यू हैव अराउंड 20 days नाउ. सो उस हिसाब से मैं चाहूँगी कि आप अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाएं. बट स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट what are the different areas of focus, and let me tell you, law syllabus को सबसे ज़्यादा अच्छे से ace करना आपके लिए ज़रूरी है, because that is your subject and the number of questions will also be more from law. What happens, many students, they focus on paper 1 and they don't pay much attention to law. But then at the end what happens, they don't qualify the examination because paper 1 तो आपका aptitude ही है. एप्टीट्यूड में कैसा होता है, टाइम कैलकुलेशन, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो अगर आप वो नहीं कर पाते, सिर्फ आप थियोरेटिकली पढ़ के जाओगे, तो आपका एप्टीट्यूड तो क्लियर होगा ही नहीं, और आपकी जो लीगल की पढ़ाई है वो भी कम होने की वजह से आप लॉ में भी सफिशिएंट कट ऑफ नहीं ला पाते. So this is the basic problem which majority of the students are doing, because they think that we know law but we don't know the general paper 1. But उस वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते. So ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपका लॉ का थरो नॉलेज, थरो स्टडीज़ होना बहुत ज़रूरी है. Now the question comes, what are the areas of focus in law syllabus? वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि UGC NET एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है that only these many questions will be asked from these many topics. ये एक wrong notion है काफ़ी students के दिमाग में that they will be asking you a fixed number of questions from all the units. It is not like that. If you check out the previous year question papers, especially the recent past, that is the June exam, last year December exam, you can check it out. Last year exam, उसके पहले वाले exam भी अगर आप देखोगे, they have stopped maintaining such kind of balance. They are now asking you questions as per their whims and fancies. ये वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी. सो आपको ये समझना होगा कि आपको लॉ का पूरा सिलेबस कवर करना है. सो डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सेग्रीगेट द टॉपिक्स विच यू आर ऑलरेडी गुड एट. ये सारे सब्जेक्ट्स आपने LLB में पढ़े हुए हैं. इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू, बट हाउ यू हैव टू स्मार्टली कवर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, jurisprudence, कमर्शियल लॉ, IPC. ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा कोर एंड बेसिक है. इनका आंकड़ा कभी ऊपर नीचे नहीं होगा.
बिकॉज ये बहुत बेसिक एरियाज हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही आने वाले हैं. सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी वेल. नोट दीज क्वेश्चंस, दीज टॉपिक्स डाउन, और एल्स आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट डाउन कर लो आराम से, या फिर आप इस पीपीटी को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए. ये टॉपिक्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, एंड इनसे रिलेटेड केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर अबाउट कमर्शियल लॉ इज दैट इट इज़ हैविंग वेरियस टॉपिक्स कवर्ड इन इट. It is having various acts covered in it. So according to that, there are many chances that if you do this commercial law unit, then definitely you will be able to solve many questions, as they are having different acts under the heading of commercial law. So वो भी आपका एक beneficial point हो जाता है अगर आप commercial law unit cover करते हैं. अगर आप इस unit को छोड़ दोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लॉज कवर्ड हैं, वहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही हैं. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है. सो इस तरीके से आपको वो सारे लॉज कवर करने का फ़ायदा हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स विच आई हैव मार्क्ड इन ग्रीन ओवर हियर: एनवायरमेंटल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, फैमिली लॉ, IPR, कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब ये मैंने ग्रीन में क्यों मार्क किए हैं? टू जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट दैट दीज आर द टॉपिक्स वेयर दे ट्राई टू जस्ट कीप ऑन चेंजिंग. यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल इस बार उन्होंने एनवायरमेंटल लॉ एंड ह्यूमन राइट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, बाकी यूनिट्स में से एक हाथ 2 क्वेश्चन पूछ लिया, IT एंड गवर्नेंस से या IPR से या फैमिली लॉ से. फिर अगले सेमेस्टर में उन्होंने, अगले टर्म ऑफ एग्जाम में उन्होंने क्या किया, फैमिली लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. फैमिली लॉ में तो केस लॉज भी है, उसमें से केस लॉज वाले क्वेश्चंस, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए. स्टूडेंट्स ने अगर फैमिली लॉ नहीं पढ़ा है तो दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. बट देन नेक्स्ट टाइम व्हाट दे डू, दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ. बट टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया, एनवायरमेंटल लॉ से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए. सो लाइक दिस दे कीप ऑन वेरिंग इट एवरी टाइम. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट इन दिस अटेम्प्ट व्हाट दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन. वो जो बेसिक 5 टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा द वेरिएशन इज गोइंग टू बी देयर इन दीज टॉपिक्स मार्क्ड इन द ग्रीन. So like that, you have to be prepared for this, and then you have to plan a strategy for yourself according to this. And let me tell you that you should not leave any unit. And it is not that difficult to cover the law syllabus because you have already studied this. Study the law syllabus thoroughly. And you plan practicing mock tests for the aptitude section, क्योंकि उसको आप कितना भी पढ़ो उस समय आप एग्जाम में उसको कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज वो एप्टीट्यूड है, उस पर आपका क्वालिफाइंग डिपेंड करता है. एंड अगर आपने लॉ सिलेबस को अच्छे से कर लिया, यू कैन कवर सफिशिएंट मार्क्स इन द लॉ इटसेल्फ, इन द लॉ सेक्शन इटसेल्फ. दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दिस. पहले 5 टॉपिक्स तो आपको करने ही हैं अच्छे से, एंड देन यू कैन प्लान हाउ यू हैव टू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम द रिमेनिंग 5 यूनिट्स एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज स्टडिंग देम फर्स्ट. इस तरीके से आपको अप्रोच करना होगा. एंड डेफिनेटली इफ यू अप्लाई द स्मार्ट स्टडी ट्रिक, apply the proper strategy, definitely you will qualify the examination in this attempt. So this is how I would like to guide you all. If you have any queries, you can reach out to us in the comment section of this video. Also, you can reach out to us by emailing us or calling us. As I had told you all the details, don't forget to subscribe to Legal B. Prepare 50% faster with us at iExamBee.